Good morning students. Today is 12th May and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 29th lecture for class 9th, and in today's lecture we will continue discussion on algebraic identities. So in today's lecture at first we will discuss some algebraic identities. So a plus b whole cube. Okay, so this is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. We can write this also in the format of a cube plus b cube plus, and from these two if we will consider 3ab common, it is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b whole cube, right ना. So see, देखो a plus b whole cube को a plus b whole cube, we can write this as a plus b into a plus b square, ऐसे भी लिख सकते हैं. So this implies a plus b whole cube is equals to a plus b into a plus b square, and you know a plus b square is a square plus 2ab plus b square. ये लिख लिया. अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस a इंटू 2ab 2a स्क्वायर b a इंटू b स्क्वायर ab स्क्वायर, देन अगेन b इंटू a स्क्वायर is ba square, b into 2ab is 2ab square, and b into b square is b cube. Now when we will collect similar terms, a cube 2a square b plus a square b is 3a square b, and ab square plus 2ab square is plus 3ab square and plus b cube. तो ये तुम्हें रिजल्ट बन जाता है a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Now we will rearrange it, a cube plus b cube, and from these two we will consider 3ab common, so 3ab into a plus b. So this is how we will get the formula of a plus b whole cube. बात समझ में आ गई. a plus b whole cube का फार्मूला जो आता है कैसे आता है, वो फंडामेंटल क्या है, इसका बेसिक क्या है, वो मैंने यहाँ पर भी डिस्कस कर दिया है. इन सेम वे यू कैन फाइंड रिजल्ट फॉर a माइनस बी क्यूब. दिस इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. ओके, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, and from these two if you will consider minus 3ab common, so you will get a minus b. तो ये a माइनस b होल क्यूब और a प्लस b होल क्यूब का रिजल्ट तुम्हें याद रखना है. इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन दिस फार्मूलाज. ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन. So question number 6, exercise 2.5. I think up to question number 5 we have discussed in previous lecture. So now we will start discussion from question number 6 onwards. देखो क्या है क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. वेयर इज द क्वेश्चन? जस्ट वी नीड टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. So 2x plus 1 cube. Okay, so if you can recall, just we have discussed a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So this is of the form of a plus b whole cube. Okay, so we can write tx plus 1 cube. a cube a की जगह पर देखो क्या है, ओके, प्लस 3a स्क्वायर b a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a b स्क्वायर प्लस b cube. Is that clear? So 2 cube 8, this is 8x cube plus 3 into 4x square into 1 plus 3 into 2x into 1 plus 1. So 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1. This is your answer, expanded form for the first part, 2x plus 1 whole cube. Is that clear? चलो फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पर? x माइनस दिस इज 2y अपॉन 3, 2y बाई 3 क्यूब. ठीक है, तो देखो ये क्या है, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म है. अगर तुम रिकॉल कर पा रहे हो, a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये रिजल्ट होता है.
ए माइनस बी होल क्यूब का। सो इस रिजल्ट पर हम लोग इसको एक्सप्रेस करें तो ए क्यूब ओके माइनस 3a² और बी क्या है 2y/3 प्लस 3ab² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा x³ माइनस, देखो ये 3 कैंसिल हो गया तो यू विल गेट 2x²y। यहाँ क्या हो रहा है देखो, तो इसको एक बार लिखो 3x, ये 2y का स्क्वायर 4y², 3² 9 एंड ये 2y³ करो 8y³ अपन 27। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी कैन x³ माइनस 2x²y एंड हेयर यू विल गेट 4xy² अपॉन 3 एंड माइनस 8y³ अपॉन 27। तो ये तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ए माइनस बी होल क्यूब फार्मूला पर इसको एक्सप्रेस कर देना है। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी यू विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। ओके, सो नाउ विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो तो जो फर्स्ट पार्ट तुम्हें दिया है 99 क्यूब, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 100 माइनस 1 क्यूब। फिर इसको ए माइनस बी होल क्यूब फार्मूला पर एक्सपेंड करके सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट देखो क्या है 102 क्यूब, ठीक है 102 क्यूब को 100 प्लस 2 क्यूब लिखें, फिर ए प्लस बी होल क्यूब पर सॉल्व हो सकता है। थर्ड पार्ट देखो क्या है 998 क्यूब, इसको आप क्या लिखोगे तो 1000 माइनस 2 का क्यूब, फिर ए माइनस बी होल क्यूब पर हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं कोई एक पार्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी दो पार्ट आप होमवर्क में कर लेना इसको आगे एक्सपेंशन। मैं थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो इसको आगे क्या लिख सकते हो, इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब, तो ये क्या है ऐसे लिख सकते हो, इसको ए क्यूब लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो माइनस 3a² बी प्लस 3ab² ओके एंड माइनस बी क्यूब, तो कितना आ जाएगा -2 क्यूब आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? सो वी कैन राइट दिस एज ये कितना हो गया 1 000 000 000, ये तुम्हारे पास हो गया कितना -3 × 2 4 इंटू 1000 कितना स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना ये 6 × 1000 स्क्वायर प्लस ये 4 × 3 12 × 1000 एंड -8। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, तो दिस इज -8 लिखो। तो इन दोनों में अगर हम 6000 कॉमन कर लें -6000, तो यहाँ पर ये 1000 का स्क्वायर है, 1000 हमने बार बुलाया है तो 1000 अंदर रह जाएगा और मैंने नेगेटिव कॉमन लिया है, ये 12000 है, -6000 कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा -2। ओके, सो फिर से इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इज -6000 × 998। पहले इन दोनों को ऑपरेट कर लें, तो इसमें ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros and 1, टोटल 10 डिजिट है। आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 डिजिट्स यहाँ पर रिमेनिंग होंगे, -8 कर देंगे एंड दिस इज 2। ओके 9 करेक्ट। नाउ -6000 × 998, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 598800, ये आप कैलकुलेशन कर लेना और इसके बाद ये आ जाएगा 9940111992। ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना इस तरीके से, ये हमारे पास आंसर यहाँ पर बन रहा है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और आंसर करें इस पर, बाकी दो पार्ट आप होमवर्क में करना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है एंड वी हैव टू फैक्टराइज इट। सो देखो जो फर्स्ट पार्ट है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab² इक्वल्स टू 8a³ को वी कैन राइट 2a³, ठीक है, प्लस b³। 12a² b को वी कैन राइट 3 ×
3 इंटू 4a² लिख लो इंटू बी, देखो ये 12a² भी आ गया एंड प्लस 3 इंटू 2a 3ab² ऐसे लिख सकते हैं. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ सो a प्लस b होल क्यूब ऐसा आ गया. एंड वी कैन राइट दिस एज 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, ऐसे आप लिख सकते हो. चलो मैं फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर दूँ. फिफ्थ पार्ट पर क्या लिखा है 27p³, तो ये लिखा है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² एंड प्लस 1/4p. सो वी कैन राइट दिस एज 3p³. ठीक है, फिर माइनस 1/216 को माइनस 1/6 का क्यूब लिख सकते हो एंड देन माइनस 9/2p², सो माइनस 3a²b लिखते हैं इसको, माइनस 3a²b एंड देन प्लस 3ab². फिर तुम देखो ये तुम्हें क्या मिलता है. एक्चुअली इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये लिखा है माइनस 3 इंटू 3p² मीन्स 9p² इंटू 1/6. ठीक है, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसे कैंसिल करोगे तो माइनस 9p²/2 ये टर्म मिल गया, माइनस 9p²/2. फिर नेक्स्ट टर्म पर आप देखें तो यह 3 इंटू 3p 1/6² मतलब 1/36. ठीक है, तो इससे तुमको क्या मिलने वाला है, ये 12 और ये 4 और p रह गया, सो प्लस p/4, तो प्लस p/4 और ये माइनस b³ 1/6 का क्यूब 1/216 माइनस 1/216 आ गया. तो a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ a माइनस b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब बनता है. इज दैट क्लियर. और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6. बात समझ में आ गई. So in today's lecture we have discussed regarding algebraic identities of the type a plus b whole cube, a minus b whole cube, and we have discussed some related question. So today I will upload assignment related to this. Okay, that means the question of exercise 2.5 from question number 6 to question number 8 I will upload with answer key and please try to solve. Okay, so that's it for today. Thank you.